اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ آج کے اس سبق میں ہم اسماء مشتقہ کے مزید جو رہ گئے اسے دیکھیں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا اسماء مشتقہ میں بنیادی طور پر 6 حصے ہوتے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم صفہ یعنی صفت، اور اسم تفضیل اور اسم اعلیٰ۔ تو آئیے آج وہ ہم اسم اعلیٰ کو دیکھیں گے انشاءاللہ، بلکہ اس سے پہلے اسم صفت ہے۔ صفت اور اس کے اسم صفت کے بنانے کے قواعد ہم دیکھیں گے۔ اسم صفت اسم فاعل اور اسم مفعول ان کے وزن پہ آتا ہے۔ ان کے بہت سے استعمال ہیں، کبھی فاعل اور کبھی مفعول بن کر آتے ہیں، کبھی مبتدا اور خبر بھی بن سکتے ہیں۔ یہ صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے رجل ظالم اور رجل مظلوم۔ اب یہ ظالم اس میں فاعل بھی ہے اور یہ اس میں صفت بھی ہے، یعنی کسی کی ایٹریبیوٹیبلٹی بھی ہے، اور اسی طرح مظلوم یہ مفعول کی حالت بھی ہے اور صفت بھی ہے۔ تو یہ ان کے جو اوزان ہوتے ہیں اس میں صفت کے، فعیل کے وزن پہ ہوتا ہے خاص طور پہ، جیسے باب کروما اور سمع سے فعیل کے وزن پہ آتے ہیں، جیسے سریع، حریص، رحیم، یہ سب فعیل کے وزن پہ ہیں۔ اس میں مفعول کے معنی میں شاذ و نادر جیسے جریح، رجیم، قتیل، یہ بھی فعیل کے وزن پہ آتا ہے، لیکن یہ کم ہی آتے ہیں، زیادہ تر وہ لازم افعال سے آتے ہیں۔ فاعل اور فعیل کے وزن پہ آنے والے لفظوں میں جو مشترک بات ہے، اس میں فاعل اور اس میں صرف دونوں کا مفہوم ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ان کے مفہوم میں ایک فرق بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا سامع، سمیع، عالم، علیم، حافظ، حفیظ جیسے الفاظ میں کوئی فرق ہے؟ آپ کو کوئی فرق لگ رہا ہے؟ سامع، سمیع، عالم، علیم، حافظ، حفیظ، کوئی فرق ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ ہاں جی، اوزان کا فرق ہے۔ اس میں سامع ان میں حمزہ ہے اور سمیع ان میں یا کے ساتھ اس کا تھوڑا سا فرق، سامع فاعل کی طرح اور سمیع فاعل کی طرح آ گیا۔ نہیں، مفہوم میں کیا فرق ہے؟ یعنی مفہوم میں کے لحاظ سے ان میں کیا فرق ہے؟ ایک سننے والا سر معنی تو ایک ہی، سنا گیا، ایک سامع فاعل بھی ہے سننے مفعول والا، ہے۔ جب آپ سمیع بھی کہتے ہیں جسے سنا یہ فاعل کے وزن پہ بنے ہیں، یہ فعیل کے وزن پہ بنے ہیں، یہ تو اس کی بناوٹ ہے۔ مفہوم کا مطلب ہوتا ہے معنی کے لحاظ سے کوئی فرق آپ معنی کو کے لحاظ سے سیم ہی ہے۔ سر جی اس میں یہ چیز جیسے تسلسل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں فاعل اور فعیل میں کیا فرق ہے۔ فاعل کسی چیز یا عارضی طور پر پائے جانے کا مفہوم ہوتا ہے، جبکہ فعیل میں پائیداری اور ہمیشگی کا مفہوم ہوتا ہے۔ ایک فرق کوئی ہے، یہ جو فاعل کے وزن پہ آتے ہیں الفاظ، یہ عارضی ہوتے ہیں۔ مثلا سامع ایک دفعہ سن لیا سننے والا، سمیع ہمیشہ سننے والا، تو یہ ایک فرق تو یہ ہوا۔ اسی طرح فعیل عارضی ہے، وہ طاری ہونے کے بعد جلد زائل ہو جاتا ہے، لیکن ہمیشگی کا مفہوم وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ بار بار طاری ہو، جیسے بھوکا، پیاسا، ناراض، خوش، یہ عارضی ہے۔ بھوکا تھا، کھانا ملا، بھوک ختم ہوگی، پیاسا تھا، پانی ملا، پیاس ختم ہوگی، ناراض تھا، خوش ہوا، ناراضگی ختم ہوگی، خوش تھا، ناراض ہوا، خوشی ختم ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عارضی ہے۔ جیسے فرح، تعب، عاشر، یہ کیا ہے؟ یہ عارضی ہے۔ جی اسی طرح یہ فاعل کے وزن پہ دیکھیں، اس میں فاعل اور مفعول کے اوزان جو صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، وہ اس کسی صفت کے عارضی پائے جانے کو ظاہر کرتے ہیں۔
जैसे हमने कहा था खुश हुआ, नाराज हुआ, अकड़ गया, ये क्या है, आर्जी थे। लेकिन फाइलुन के वजन में क्या है, हमेशगी पाई जाएगी। रहीमुन है तो हमेशा से रहीम है, तवीलुन है तो हमेशा से लंबा है, कतीलुन है तो हमेशा से कत्ल कर दिया गया, यानी पक्की बात है, वो दोबारा रिपीट नहीं होनी, मुस्तकिल होगी, कायम दायम। मुस्तकिल से पायदारी और हमेशगी का मफहूम पाया जाता है। ये एक बड़ा फर्क है इन दोनों में। फाइलुन में जो सिफ्त होती है वो आर्जी होती है, फाइलुन में हमेशगी होती है, मुसलसल, कंटिन्यूटी, इंटेंसिटी, जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। और एक लफ्ज होता है फाइलुन। फाइलुन जो है ये फरहुन, ताइबुन, अशरुन, ये भी जो है आर्जी होते हैं। लेकिन अगर बार बार होने वाली सिफात है, यानी आर्जी तो हैं लेकिन बार बार पलटती हैं, मुस्तकिल नहीं रहती। ये नहीं होता कि आदमी मुसलसल भूखा है सारी उम्र, ऐसा नहीं होता कि मुसलसल खुश है, बार बार पलटती है। तो लिहाजा ये तीन वजन है, फाइलुन जो आर्जी हो, फाइलुन जो दायमी हो, फाइलुन इसका मतलब है बार बार लौटने वाले, जैसे तवाब था उस तरह, यानी बार बार लौटने का फर्क पा जाएगा। तो इस्माए सफ़ा की एक खास सिफ्त ये है कि ये रंग ज़ाहिरी ऐब या हुलिया के मायने में इस्तेमाल होते हैं, और उनमें भी दुआम और हमेशगी के मायने होते हैं। यानी जब हम इन्हें रंग या ज़ाहिरी ऐब या हुलिया के मायने लेते हैं वो दायमी होता है। मसलन अगर हम कहें कि ये सबज रंग का है तो सबज रंग उसका हमेशा के लिए रहेगा। हम कहते हैं ये जो है बहरा है तो बहरगी उसकी हमेशा की है। इसी तरीके से अंधा है यानी ऐब है उसका जिस्मानी ज़ाहिरी, लंगड़ा है तो ये क्या है, हमेशगी है कि वो लंगड़ा है। तो इसमें दायमी पन पाया जाता है जब इसे रंग और ज़ाहिरी ऐब और हुलिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस किस्म की जो है सिर्फ बनाने के फिर एक अलग वजन भी है, उसे कहते हैं अफ़आलू। अफ़आलू के वजन पे बनाते हैं। इन्हें अफ़आलुल अलवान व अयूब या अफ़आलुल सिफ़ा कहते हैं। जब इनको इस वजन पे बनाते हैं तो फिर इनको लिए मखसूस नाम हो जाता है अफ़आलुल अलवान व अयूब या फिर अफ़आलुल सिफ़ा। जैसे ये देखिए ऐब के मायने में बाकीमा, बाकीमा यानी हमेशा से, इससे लिखना बकामन, गूंगा होना। अब कुम गूंगा, यानी ये सिफ्त है दायमी, गूंगा है हमेशा से गूंगा। लौन खाजीरा, इससे लफ्ज लिखता है खजरान, यानी सबज होना, और इसकी सिफ्त क्या होती, अखजरू। अखजरू क्या, ये अफ़आलू के वजन पे है, अफ़आलू के वजन पे है, ये क्या है, दायमी उसका रंग सबज है। तो अफ़अलू से देखिए कैसे बनते हैं, अफ़अलू सिफ़ा, यानी जो सिफत के लिए अफ़अलू से लफ्ज बनते हैं उन्हें कहते हैं अस्माए अलवानो अयूब, यानी उनमें या तो जिस्मानी ज़ाहिरी कोई नुक्स होता है या रंग का फर्क होता है, जो रंग होता है वो मखसूस होता है। और ये एक खास किस्म के जो है वो अस्मा होते हैं जो ज़ाहिरी रंग और ऐब और हिलिया के मायने होते हैं। और दूसरा होता है अफ़आलुल तफ़ईल, ये भी अफ़आलू के वजन पे आता है। हम कहते हैं अकबरू, सबसे बड़ा, वो क्या है, अफ़आलू के वजन पे अकबरू। तो ये क्या है, अफ़आलू दो तरह से इस्तेमाल होता है। अगर ये इस्तेमाल हो रहा हो अलवान और अयूब के लिए तो फिर इसे हम कहेंगे इस्मुल सिफ़ा, ये सिफ़ा। और अगर ये किसी से कंपेयर करने के लिए आ रहे हैं, जाहिद आलिमुन मिन बकर, जाहिद आलिम से ज्यादा जानने वाला है, ज्यादा बड़ा आलिम, तो फिर क्या होगा, तफ़ईल के मायने में। हाँ, एक सूरत है जिसमें ये दोनों मायने इकट्ठे हो जाते हैं, वो है अल्लाह ताला। अगर अल्लाह ताला के लिए तफ़ईल का वजन आता है तो वो सिफत भी होती है, एट द सेम टाइम जो है वो उसका कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जो है सबसे बड़ी डिग्री, वो भी होती है। ये अल्लाह ताला। बाकी के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिए, अगर ये अफ़आलू के वजन पे कोई इसम बना है, कोई लफ्ज बना है, तो वो अगर अलवान और अयून के लिए है तो उसको सिफ्त, और अगर वो जो है कंपैरेटिव किसी चीज से कंपेयर करने के लिए बना है, जैसे मैंने कहा था ज़ैदुन आलमु मिन बकर, जायद जो है बकर से बड़ा आलिम है या बड़ा जानने वाला, तो तब इसे इसमें तफ़रीक है।
یعنی صفت اور تفعیل اصل میں ایک ہی وزن پہ ہے، ان میں فرق آتا ہے ان کے استعمال میں. اگر یہ استعمال ہو رہے ہیں کمپریشن کے لیے تب اسے ہم کہیں گے تفعیل. اگر یہ دائمی رنگ حلیہ نقص کے لیے آ رہے ہیں تب ہم اسے کہیں گے اسم صفت. اور اگر یہ لفظ آ رہا ہے افعل کے وزن کا اللہ تعالیٰ کے لیے پھر اس میں دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی، صفت کے معنی بھی ہوں گے اور تفعیل کے. اس میں اگر کوئی بات کلیئر نہیں ہے تو ابھی مجھ سے پوچھ لیں کیونکہ اس کے بعد میں آگے جمپ لگا لوں گا. یعنی افعلو جو ہے یہ صفت کا ایک، ہم نے دیکھا صفت میں تین چیزیں، فاعل ان کے وزن پہ بھی بنتا ہے، فاعیلون کے وزن پہ بھی بنتا ہے، اور ان دونوں میں کیا فرق تھا؟ فاعل جو ہے وہ دائمی نہیں ہوتا، ٹیمپریری ہوتا ہے، جیسے بھوک لگنا، خوش ہونا، ناراض ہونا وغیرہ. اور اگر جو ہے وہ فاعیلون کے وزن پہ کوئی لفظ بنا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں دائمی ہمیشگی پائی جائے گی، جیسے رحیمن ہمیشہ کے لیے رحیم. پھر دوسرا ہم نے دیکھا کہ ایک اور وزن بھی ہے جو صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں افعالو. اس افعالو میں اگر وہ کسی چیز کے رنگ کے بارے میں آ رہا ہے یا جو ہے اس کے عیوب کسی جو ہے نقص کے بارے میں آ رہا ہے تب اسے ہم کہیں گے اسماء الوان و عیوب. اور یہ کیا؟ یہ دائمی ہے. جیسے رنگ سبز ہے، جیسے گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، یہ کیا دائمی کے معنی میں. لیکن اگر یہی افعلو کا وزن کسی چیز سے کمپیئر کرنے کے لیے آ رہا ہے، جیسے ایک میں نے مثال دی زید عالم من البقر، زید عالم زیادہ ہے، تو وہاں پہ ہم اسے کہیں گے تفعیل، وزن ایک ہی ہے افعل. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہے خاص وہ میں نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ افعالو کا وزن آتا ہے تو اس میں دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، صفت بھی ہوتی ہے وہ اللہ کی اور ساتھ ہی ساتھ اس کا تفعیل کا معنی بھی ہوتا ہے، یعنی سب سے بڑا. جیسے کہ مثال دی اکبر، اکبر بڑا، سب سے بڑا، اور ساتھ میں کیا ہے وہ اس کی صفت بھی اللہ کی ایک بڑائی ہے اس کی. تو اس لیے یہ صفت کے اندر جو ہے تین چیزیں آپ کو یاد رکھنی پڑتی ہمیشہ. فاعل اور مفعول کے وزن پہ آتا ہے تو بطور فاعل اور مفعول استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ جو ہے اس میں کوئی عارضی چیز ہے تو وہ فاعلون کے وزن پہ بن رہا ہوتا ہے، اور اگر دائمی چیز ہوتی ہے تو فاعیلون کے وزن پہ بن رہا ہوتا ہے. اور دوسری چیز ہے یہ افعالو کے وزن پہ بھی بنتا ہے. جب بنتا ہے تو اس میں اگر دائم ہمیشگی پائی جائے پھر اسے اسماء الوان و عیوب کہیں گے، اور اگر یہ جو ہے عارضی ہو تو پھر جو ہے اسے ہم تفعیل کہیں گے. اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو افعلو کے وزن سے پھر اس میں صفت اور تفعیل ہونی. چلیے گردان کے اہم سیغے دیکھیں. افعلو مذکر واحد، فعلاء مؤنث واحد کے لیے جب بنائیں گے تو اس میں کیا ہے افعلو کی جگہ فعلاء کے وزن پہ بنے گا. فلعن جمع دونوں مذکر مؤنث کے لیے فلون کا وزن، یعنی جو افعل ہے اس کی گردان یہ ہے افعلو فعلاء فعلاء. فرق کیا ہے؟ افعلو مذکر واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، فعلاء واحد مؤنث کے لیے ہوتا ہے. فلعن جو ہے وزن جمع مذکر دونوں کے لیے ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ اسم الصفت کا ایک وزن ہے. اور دوسرے کون سے دو وزن تھے بھائی؟ ایک تو مل جاتا ہے، بھول جاتا ہوں. ہاں جی ایک وزن تو یہ افعلو ہے، یہ تو میرے سامنے لکھا ہے مجھے نظر آ رہا ہے. باقی دو وزن بھی کوئی ابھی ہم نے پڑھے تھے اتنی جلدی تفعیل جی تفعیل فاعلون بھی پڑھا اور فاعلون بھی پڑھا. اور فاعیلون، فاعل اور فاعیلون وزن تھے، اور تیسرا افعلو. افعلو میں پھر یہ یاد رکھیں اگر مذکر کے لیے بنا رہے تو اس وزن پہ بنائیں گے، مؤنث واحد کے لیے بنا رہے تو فعلاء کے وزن پہ بنائیں گے، جیسے ہمراؤ، کبراؤ، صغراؤ، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. اور اگر فعلون کے وزن پہ ہوگا تو وہ جمع کے لیے ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں. اخضرو، اخضرو الوان ہے، احمرو الوان ہے، اصفرو الوان ہے. اخضرو سبز، احمرو سرخ، اصفرو زرد، ارزقو نیلا،
एबदू सफेद, अस्वदू स्याह। ये क्या है? ये अलवान के जखीरा अल्फाज। अयूब देखें, अब कमू गूंगा, अम्मा अमा अंधा, अराजू लंगड़ा, अज़कू नीली आंखों वाला, अहवरू आंख की सफेदी से, इसी से ये वो का लफ्ज निकला है कि मोटी मोटी आंख, वो यही है लफ्ज अहवरू। खुलासा ये है अस्मा सिफ्त की एक किस्म जो रंग, जाहिरी, अयूब या हुलिये के मायने रखती है, उसका वजन क्या है? हम अफ़आलू के वजन पे लेते हैं। मसलन ऐब, बाकीमा, ये अफ़आलू के वजन पे बनेगा कैसे? अब कम, ये बाकीमा ऐब है, इससे जब हम सिफ्त बनाएंगे तो क्या होगा? अफ़आलू के वजन पे अब कम। इसी तरह खिदराज है सबज, इससे जब हम ये अफ़आलू के वजन पे बनाएंगे तो क्या बनेगा? अख़ज़ारू। ये क्या है? रंग और अयूब की बात। और इसकी गिरान कैसे कहते हैं? वाहिद मुज़क्कर के लिए, अफ़आलू मुअन्नस के लिए देखिए अख़ज़ारू, अहमरू, अबअकुम। और फ़ौला मुअन्नस के लिए इसके जैसे खज़राओ, हमराओ, बकमाओ, कुबराओ, सुबराओ। या फ़ाउलुन जमा के लिए वजन होंगे, इसकी मिसाल है खुज़ुरुन, रुमरुन, बुकमुन। ये क्या है? याद है ना? सुम्मुन, बुकमुन, उम्मुन, वो जो आता है वो क्या है? जमा के सिगे में आता है बुकमुन, ये वहाँ इस्तेमाल हुआ है, तो ये जमा के। तो ये इसका खुलासा था अलवानो अयूब का। इसको आप अपनी तरफ पर देख लीजिएगा और किताब से सुनिए। अब आ जाते हैं हम अपने ज़ख़ीरा अल्फाज की तरफ। खादेउन धोखेबाज, सफिया या सफिया, हाँ सफिया। बेवकूफ, बेवकूफ। का सवाल, आज तो याद तैयारी करके आई है। लापरवाह, वेरी गुड, आज साहब से उस्ताद भी बैठे। अम्बाओ, अम्बव, आम, भाई आजकल सीजन है। खूख, खूख, आड़ू, इसका भी सीजन है। आड़ू, सर हामिद, सर एक चीज हाँ। अम्बाऊ, जैसे आप आम को इसके अरबी में यहाँ अम्बाऊ कहते हैं, जैसे यहाँ यूएई के अंदर मैंजो बोलते हैं उसको, मैंगो को मैंजो, जीम लगा देते हैं, इस तरह से यहाँ पे यूज होता है। सिस्टर ये हामिदुन का पहले मायना बताएं ना, फिर आपके सवाल। खटाई, वेरी गुड, खट्टा खटाई, खट्टा, वेरी गुड। हाँ जी, अम्बुन, इन अंगूर, 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 ये कुरान में बात है रोमान और अंगूर, ये जो है अंगूर। शामी खातून, ये मीनारों पे की ताल्लुक शानदार, रखता है। शानदार, फिजुन, फिजूल कच्चा, अल-फिस्दातु, चांदी, अल-फिस्दातु, चांदी, चांदी, वेरी गुड। मुनस्सफुन, मुनस्सफुन, आधा, आधा, आध आध कचरी, कचरी, यानी आध, बहुत आध कच्ची कचरी। पकी, कच्ची पकी। ये खजूरें होते हैं ना डोके, उनको कहते हैं कच्ची पकी। जी, वफी, वफी, वफादार, वफद, वफी यानी वफादार। वफादार, वफादार, आज आप लोगों ने माशाल्लाह तैयारी की है, मैंने नहीं की है। नाद, हाँ जी, नादिजुन, कामयाब है नहीं, पक्का। हाँ, ये मेरे सर पे होती है, मुझे पता है। टोपी, कलनना, टोपी, आइए, मुसाइदुन, मुसाइदुन, असिस्टेंट, मिक्सारुन, ये तो नया लफ्ज़ है, बातूनी, बतूनी, बतीखु, खरबूजा, 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 खूफुन, ये तो अभी बता दिया किसी ने। आड़ू, मुगलकुन, मुगलकुन बंद, जिसके लिए वक्फ भी हमने पढ़ा था, ये ट्रैफिक पे लिखा है, वकूफ करें, बंद करें। साबुन, मुश्किल, महफाजतुन, महफाजतुन, बस्ता, हिफाजत की बस्ता, 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 तो आइए आज के नए अल्फाज हैं। रेशातुन, रेश, रेश, रेश कहते हैं निब को,
निब मिंदरातुन मे- मेज को कहते हैं, मेज डेस्क में। डेस्क मिरसामु पेंसिल, पेंसिल सबूरतुन तख्ता स्याह ब्लैक बोर्ड। माहियतुन महू करना, मिटाना, खत्म करना, रबड़। रबड़ मिजारून दवात को कहते हैं, स्याही वाली दवात जो होती है, इंक को। कलम दवात अमीद प्रिंसिपल। लोह तख्ती महफूज से तख्ती मिबराव कलम तराश। कलम तराश मुअल्लिमतुन टीचर आइए अब ये आज हम इसमें इशारा के बारे में पढ़ेंगे। दर झेल जो है जुमलों को गौर से पढ़िए। हाजा किताबुन, ये किताब है, ज़ालिका कलमुन, वो कलम ज़ालिका है, कलम वो कलम है। हाज़िही रेशतुन, ये निब है। रिशत है, तिलका तावीलतुन, वो डेस्क या मेज है। अब इसमें जो ये हाजा है और ज़ालिका, ये क्या है? मुज़क्कर है। मुज़क्कर इशारा के साथ हमेशा मुज़क्कर जो है इसम आएंगे। किताबुन कलम, हाजे ही और तिल का ये क्या है? दोनों मुअन्नस हैं मुअन्नस, और इनके इनके सब साथ मुअन्नस। हमेशा मुअन्नस लग जाएगा। बस ये आपने याद रखते हैं जुमले बनाने। जी सही। दूसरी चीज, ये दो लफ्ज हम सवाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, मन और मा। मन के मैनी होता है कौन, इससे जो है उन चीजों के बारे में सवाल किया जाता है जो अकूल का मतलब है अकल रखने वाले। रखने वाले क्या है? तीन है, फरिश्ते हैं, इंसान है, ये इन तीन मखलूक को कहा जाता है ज़ुल अकूल। और बाकी जितने उन सबको कहा जाता है गैर ज़ुल अकूल, यानी उनमें अकल नहीं है, जिंदगी है। जितने भी हैवानात हैं, नबातात हैं, ये सब के सब जो है, चरिंदे परिंदे हैं, ये सब क्या है? जिंदा हैं, जानदार हैं, हयात है, लेकिन इनमें अकल नहीं है। तो लिहाजा इनको कहते हैं गैर ज़ुल अकूल। तो ये याद रखें, जो ज़ुल अकूल होते हैं उनके लिए सवाल मन से करते हैं। मन हुआ, मन अंतु, इस तरह। और जो माँ है इसके मैंने भी होते हैं, बट क्या, तो ये जो है हम करते हैं गैर। मसलन अगर ये एक चीज है, मैं को मन हाजा, तो इसको जो है हम क्या कहेंगे? गैर जी अकूल। तो आइए इसकी मिसालें देखते हैं। मन हाजा, इसका मतलब कोई जानदार होगा। जी अकूल क्या है? हाजा वलद, ये लड़का है, ज़ाहिर है वो जिनसे इंसान में आया तो वो ज़ुल अकूल में हो गया। हाजा कुर्सी, अब देखिए कुर्सी जो है गैर अकूल है, इसलिए इसके साथ मन नहीं आया, माँ का लफ्ज है। हाजा ये क्या है? हाजा कुर्सी। तो ये आपने एक फर्क रखना है ज़हन में। मन जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? जो उलुल अलबाब अकल वालों के लिए, और जो गैर अकल वाले उनके लिए माँ इस्तेमाल करते हैं। आइए इसकी मिसाल में, मन ज़ालिका वलद, मा हाजा कलम, मा ज़ालिका कुर्सी, मन हाजा रजुल, मन तिलका तलमीज़तुन, मन हाज़िही बिन्तुन, मा तिलका तावीलतुन, मा हाज़िही रेशतुन। अब ये देखिए हमने साफ पहचान लिया कि ये जो मन आया था, देखिए वलद के साथ आया, तलमीज़तुन के साथ आया, और जो है बिन्तुन के साथ आया, ये सब क्या है? इंसान। और जबकि माँ जो है कलम के साथ आया, और उसके बाद जो है आप देखें तिलका, माँ तिलका जो है तावीलात, और रेशा ये क्या है? गैर अकल। तो आइए इस पे तर्जमा करते हैं। हाज़िही कुर्रसतुन, जी क्या तर्जमा होगा? ये बस्ता है। कुर्रसतुन कापी, ये कापी है लिखने वाली। अच्छा, आगे है तिलका मिंदतुन, वो जो है क्या है? हाँ जी, क्या चीज है वो?
हाजा मुअल्लिम, तर्जुमा कीजिए। ये उस्ताद है। उस्ताद है। ये उस्ताद है। ज़ालिका मिर्सामु, मिर्सामु काका, हाँ जी, 3 चीजें मैं लूंगा नाम, रबड़, पेंसिल ये और पेंसिल है, दवा। ये पेंसिल है। ओके, हाज़िही सबूरत, तर्जुमा कीजिए। हाज़ी सबूरत, ये तख्ता स्याह है। ज़ालिका ये उस्ताद है। ये कहाँ से आ गया? ये होता तो हाज़ा ना, वो उस्ताद है। वो तिलका महयतु, महू कर, ये मैंने इशारा किया। अरेजर वो रबड़ है। हाँ, हाज़ा मिहरुन, ये दवात है। ये दवा अब ये याद रखना, यही जुमले आपको उर्दू में दूंगा, आपने इसकी अभी बनानी है। हाज़िही मुअल्लिमातुन, ये उस्तानी है। उसकी नहीं है, ये उस्तानी उस्तानी। है। ज़ालिका अमीदुन, वो प्रिंसिपल है। अमीद वो प्रिंसिपल प्रिंसिपल है। अब ये याद रखना, फिर मैं आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरी याददाश्त भूल जाएगी। ये कापी है, हाँ जी। हाज़िही कुर्रासतुन, वेरी गुड। हाज़िही कुर्रासतुन, वो मेज है। वो तिलका मिनसतुन, तिलका मिन्नतुन और तिलका ताबीअतुन भी कह सकते हैं। ये टीचर है। हाज़ा हाज़ा मुअल्लिमुन, मुअल्लिमुन उस्तादुन। जी, ज़ालिका, चले एक लफ्ज़ में बता देता हूँ। ज़ालिका मर्रसुन, पेंसिल, ये ब्लैक बोर्ड है। हाज़िही सबूरतुन। वेरी गुड, वो उस्ताद है। ज़ालिका मुअल्लिमुन, ज़ालिका मुअल्लिम, वो रबड़ है। हाज़िही महायतुन। अल्लाह के बंदे, वो का लफ्ज आ रहे तो हाथे ही तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूंगा? जी, हाथी के में मैंने कहा ये मैं कह रहा हूँ वो रबड़ है। तिलका महू करना, हटाना, ये दवात में। जी, हाज़ी मेहबरुन। क्या मेहबरुन नहीं, वो तो मेहबरुन। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या लफ्ज लाए? ये हाज़ा ये ओके, नहीं। अभी ठीक है, पहले कुछ और कहा था। ये उस्तानी है। हाज़िही मुअल्लमतुन, वेरी गुड, वो प्रिंसिपल है। ज़ालिका अमीदुन, ज़ालिका अमीदुन, वेरी गुड। आइए अब अरबी बनाते हैं। ये शागिर्द है। हाज़ा तालिबुन, तलमीजुन, हाज़ा तलमीजुन, ये शागिर्द है। वो तख्ती है। तख्ती थोड़ा सा इधर को कर लो। तख्ती है। पहले तो वो की अंग्रेजी को सॉरी अरबी बनाए ना। वो तिलका अगर ये मुज़क्कर है तो ज़ालिका। अब तख्ती पता नहीं अरबी में मुज़क्कर है कि मुअन्नस। लौहे महफूज, लौहे महफूज, लोग कहते हैं तख्ती को। लौहे महफूज, इससे याद करते हैं। ज़ालिका लौहुन,
किसी ज़ालिका चीज को फिर याद करें ज़ालिका तो उसका लौह एक जुमला बना लें। लोहे महफूज हमारे ज़हन में बैठा हुआ है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। ज़ालिका लौहुन सन हाँ, ज़ालिका लोह। हाँ, वो क्या है? मा हाज़िही मा हाज़ा क्या है? हाँ, हाज़े ही कैसे हो गया भाई? मा हाज़ा वो क्या? हाज़ा नहीं है। वो की वो ये ज़ालिका होगा, ये तिल का होगा। हाज़ा या हाज़े का ही नहीं सकता। तो लिहाजा वो क्या है? मा ज़ालिका। मा ज़ालिका वो कुरान है। चलिए उसका जवाब दिया होगा, आपका पता चल गया हाज़ा कि- कुरानुन हाज़िल कुरान हाज़ा कुरानुन ज़ालिका कुरान ज़ालिका कुरान। हम जो बनाएंगे हम वही बनाएंगे जो हमारी सिखलाई है। बेशक कुरान में वो हाजा कुरान या ज़ालिका किताब का तर्जुमा मुस्लिम हो, वो वहाँ के हिसाब से है। यहाँ हम सिखलाई कर रहे हैं तो हम वो तो ये वो और ये का फर्क जो है वाजे करेंगे मुज़क्कर मुअन्नस से। ये मदरसा है। चलिए, आवाज पड़ी है। जी ये मदरसा है। हाज़िही हाज़ा मदरसतु हाज़ा मदरसतुन हाज़ा मदरसा तवज्जो नहीं करते, तवज्जो नहीं करते। हाज़िही मदरिसतुन बोलते होती है मदरसे के आखिर में अरबी में। हाज़िही मदरिसतुन वो मस्जिद है। चलेंगे ज़ालिका ज़ालिका मस्जिदुन मस्जिदुन लेकिन मस्जिद ये रगड़ है। हाज़िही मुहावियतुन हाज़िही मदनियत महू करना मानी इसी से निकली मुहावियतुन खत्म करना। वो कलम तराश है। ज़ालिका ज़ालिका क्या चीज? पहले तो ये देखें। सर वो अभी हमें याद नहीं हुए ना ये नए लफ्ज तिलका मिब्राहुन ओके, ये क्या है? चले ये बता दें, ये क्या है? ما هذا ما هذا ये लिबास है। هذا ثوب वेरी गुड, हाज़ा सोबुन एक्सेलेंट एक्सेलेंट जॉब। आइए ये देख लीजिए, उनके जो आपको नहीं आते थे यहाँ मिल जाएंगे। चले अब उर्दू बनाए। हाजा तलमीजुन ये ये शागिर्द है, बस्ता है ये शागिर्द है वो तख्ती है तख्ती है, है वो कौन है, मा क्या ज़ालिका क्या है, वो क्या है वो कौन कहाँ से आ गया भाई? मन का लफ्ज क्या- आएगा क्या? तो कौन बनेगा? ये तो क्या मा है? वो क्या है ज़ालिका क्या वो है? क्या है? ज़ालिका कुरान वो कुरान है कुरान वो है, कुरान है हाज़िही मदरिसतुन ये ये मदरसा ये मदरसा है, मदरसा है ज़ालिका मस्जिदुन वो मस्जिद वो है वो मस्जिद है हाज़िही महयातुन ये जबल है ये नंबर है कलम तराश है क्या था ये तिलका मिबरातुन तिलका मिबरातुन वो तिलका। वो कलम तराश है तो ये याद रखिएगा मिबरा। मा हाजा ये क्या है क्या हाजा लिबास ये ये लिबास लिबास है है ये लिबास लिबास। सोबन आपने कपड़ा कहा था वो मैंने वहां मान लिया, लेकिन ये आपके जखीरा अल्फाज के लिए है कि लिबास को लिबास भी कहते हैं। तो ये आज के जो है नए अल्फाज थे। तलमीजुन शागिर्द, रिशतुन निब, सबूरतुन बोर्ड, ब्लैक अमीदुन बोर्ड लिबासुन प्रिंसिपल लिबास तख्ती लौहुन तख्ती मिबरातुन कलम तराश कलम तराश महबूर दुआत माहियात रबड़ मिरसामुन पेंसिल मुअल्लिमतुन उस्तानी और मिन दातुन डेस्क या मेज। तो ये आज के थे। अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने समझने गौर करने याद करने अमल करने और सिखाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशाद व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।